Today's our agenda is to work on alter table, that is to add column, remove column. You can change the name of the column, right? You can modify the data type and size of the column, and you can even add or remove the constraint, that is your key, primary key from the column, right? So I have opened my database. You know how to open the database. Use 11th IP. That is what we did here. 11th IP is our database, and we have opened that. And we know how to see the table. So show tables is a command to see the tables. And I want to work on graduate. Let me see the graduate table. So this is graduate. So yesterday we tried to add two columns, board roll number and admission number, right? Now my question is, let me see the structure of the table. To see the structure of the table, the command is what? Describe. So this is my structure of the table. See, there is a board roll number column, and the size is what the structure shows. It shows you the field name, that is column name, then your type, that is the data type, and then of course the size of the this column, right? कितना character आप enter कर सकते हो. Then first column is null. Null means कि you can enter null values in these columns, right? You can enter null values in these columns. And next is key. तो अभी तक आपने कोई key नहीं लगाई है, so that's why no key is available here. Next is what it is default. तो default कहने का मतलब ये है कि if you are not entering any value in any of the column, then it will it will give you what null. And the example you can see over here, when we just added two columns here, board roll number and admission number, it itself gives what null value. तो अगर आप कुछ नहीं देते हो तो डिफॉल्ट लेके आएगा null. We can change. There are different constraints to change the default values also, but we will study later on. So right now my agenda is to work on alter table command. So see what I said कि board roll number का data type क्या है, varchar है और size 10 है. I want to change the size of this board roll number. I want to make it 15, right? So what is the command? The command is what? Alter table, and table name is what? Graduate. What do you want to do? The column is already there, right? तो हमें add तो करना नहीं है. Then next is what? Modify. So I want to modify, and मैंने क्या किया? Modify. किसको modify करना है आपको? Board roll number को modify करना है. And what you want to do is आप उसका data type दे दीजिए और नया size जो आप चाहते हैं. Suppose you want 15, so you just enter 15 over here. That's it. So now I think I have entered something wrong here. Alter table. मैम बोर्ड रोल नंबर की स्पेलिंग गलत है. हाँ, तो ग्रेजुएट मॉडिफाई BOARD मैंने A लिख दिया था, that's why it is giving error. So varchar 15. So now you can see the query is okay. It means changes has done, and you can use again describe to check whether it is there or not. So we can see now the size of board roll number is what? 15, right? So एक काम तो ये हो गया, add कर लिया हमने, modify कर लिया. Even if you want to change it into integer, you can change the data type to integer also, right ना? For example अभी हमारा जो data type है वो तो अभी आप देख रहे होगे board roll number, they are of integer. So let me say integer, and size दे तब भी integer में तब भी ठीक है, नहीं दे तब भी ठीक है. So this is what your board roll number data type is changed with the help of alter table command, and you can see the type is now changed, that is integer. ठीक है, तो describe command is used to see the structure of the table. क्या बनाया है आपने, क्या column है, क्या data type है, क्या keys लगा रखी है, everything you can see from here. Now next task is we have modified also. अच्छा मुझे लगा कि नहीं, I want to change this name. board roll number की जगह let me type CBSE roll number, right? So I want to change the column name now. जो column है आपके पास, उसी column में you want to change the
column name now. So board roll number can be changed with the CBSE roll number. How? The same आपने लिखना है alter table, right? Graduate. Now see, whenever you want to change the column name, so वहां पर आप modify नहीं लगाएंगे, वहां आप लिखिए change और आपने पुराना नंबर लिखना है यहाँ पर नाम. So old name is what your board roll number, right? And now the new new name. Suppose I want CBSE roll number, right? So I have written old roll number and then new column name. So old column name, new column name, and then of course don't forget to put the data type or size. So let it be int only. So I did int only and see query okay. And if you want to just check कि हुआ कि नहीं हुआ, you can check with the describe command. And this is your table now. मतलब कॉलम आप देख लीजिए, बोर्ड रोल नंबर की जगह CBSE रोल नंबर हो गया, right? So alter command can be used to add, modify, and even the change the column name also, right? Now I will discuss how to delete the column. Delete the column. मैं टेबल की कॉलम की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट saying about the record. Records के लिए हमने पढ़ लिया था delete command होता है, but I want to delete the column, right? So let me delete my admission number column. I don't want this. So simple thing is what? Again, alter table. You know, whenever you want to do any change in structure, you have to use alter table, right? So alter table is what? It's a DDL command. So alter table किसको करना है? ग्रेजुएट टेबल को करना है. क्या करना चाहते हो आप? ड्रॉप करना चाहते हो, तो आप लिख दीजिए ड्रॉप मतलब डिलीट करना चाहते हो. किसको डिलीट करना चाहते हो? यू वांट टू डिलीट एडमिशन नंबर. हियर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव डेटा टाइप एंड साइज. यू कैन सिंपली राइट कॉलम का नेम एंड इट गेट्स डिलीटेड. सो दिस कॉलम इज नो मोर इन योर टेबल नाउ एंड यू कैन अगेन चेक विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब and see. Now there is no column as admission number. So we have deleted the column here. तो जब भी columns की बात आएगी तो कौन काम करेगा? Alter table. चाहे उसका डेटा टाइप चेंज करना है, चाहे साइज चेंज करना है, चाहे कॉलम का नाम चेंज करना है, ठीक है, चाहे डिलीट करना है. So alter table command can be used. Now next question. Now I want to add primary key. You know what is primary key, है ना? प्राइमरी की में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते. जिस कॉलम को भी आप प्राइमरी की बनाओगे उस कॉलम में आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं डाल सकते. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, यू कांट एंटर नल वैल्यू ऑल्सो. अभी आप देखना यहाँ पर आई वॉन्ट टू डू CBSE रोल नंबर एज let's say CBSE roll number as primary key. So if I will try to enter the same number, it will not allow me to enter. Just check it. अभी int है, null है, yes बोल रहा है, और default क्या बोल रहा है? null बोल रहा है. अच्छा चेक करते हैं अगर मैं इस पे प्राइमरी की लगाती हूँ तो कैसे लगता है. अच्छा पहले देख लीजिए कैसे लगाते हैं. Alter table, right? What? Graduate. You want to add what? Primary key. So write down add, and of course you want to add primary key. So write primary and then key. Space है बीच में देख लीजिए. And which column? On which column you want to apply? So I want to apply on CBSE roll number, right? So this is what I have given. Just this much. तो आपको add क्या करना है? Alter table graduate. Add you want to primary key, but on which column you have to mention? तो आपने कहा CBSE roll number पे करना है. And as soon as you press enter, I think, see why it's not taking it as a primary key? Can you tell me? It is giving me error. Because it has null value. Null values, very good. And lots of null values, isn't it? Lots of null values. So if null value is there, तो इसका कहना है कि भाई null value को पहले आप हटाओ फिर मैं ऐड कर सकता हूँ. तो ऐसा करते हैं, सीरियल नंबर पे लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां मुझे लगता है कि मैंने कुछ डुप्लीकेट एंट्री नहीं की है, और इफ इट कुड बी देयर तो वो मुझे वो भी अलाउ नहीं करेगा. So let me do on serial number. And now it's executed. Query okay. It means what? वहां पर कोई null value नहीं होगी इसलिए लग गया है. So let me describe first. Let me show you the changes. What happened in this structure.
So you just check it. What is saying कि सीरियल नंबर क्या है, इंटीजर है. नल अब क्या कह रहा है भाई, अब आप नल नहीं डाल पाओगे उसमें, ठीक है ना. और की क्या हो गई आपकी, प्राइमरी. जबकि इन सब में आप नल डाल सकते थे, नल अलाउड है. बट अब ये क्या कह रहा है कि यू कांट एंटर नल एंड बिकॉज इट इज अ प्राइमरी. तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जरा, मैं ना लेट मी शो यू टेबल. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रेजुएट एंड लेट मी ट्राई टू एंटर सम डुप्लीकेट वैल्यू. चलो पहले 11 डालते हैं और फिर डालेंगे. तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू ग्रेजुएट values. Abhi I have just made serial number as a primary, so it means it will not allow me to enter the duplicate value. पहले एक वैल्यू एंटर करते हैं फिर देखेंगे. दोबारा से एंटर करके मैंने कहा 11 and let's say Sudha, let's say stipend, let's say 500, computer and average, let's say 98, position, let's say 1, and let me put board roll number also, so something like this, and query. Okay, of course my record is entered, right? Sudha is there, but now I'm trying to enter same thing now, right? इसी रिकॉर्ड को मुझे दोबारा से एंटर करना है, या फिर हो सकता है मैं नाम डालना भूल रही हूँ, मैं कुछ और, मैं रोल नंबर डालना मुझे नहीं याद है, मैं रोल नंबर चेंज करना भूल गई ना, आई एम एंटरिंग समथिंग एल्स. लेट्स से शिप्रा, ठीक है. See, can you see the error here? Just check the error here. Error is what? It is saying duplicate entry 11 for key graduate dot primary. So it is saying कि आप duplicate entry कर रहे हैं, है ना, आप entry duplicate कर रहे हैं primary key में. So it is not allowing you to enter the duplicate value even, right? और जहां तक बात आती है null की, तो एक बार null वाला भी करके देख लेते हैं. अगर मैंने कहा insert into ये, देखो null वैसे allow करेगा, बट यहाँ पर अगर आप null डालना चाहोगे, it will not allow you to enter. Check it and it will see what it is saying. Serial number cannot be null. So reason behind is what? Say this type of question can be given. ऐसे आपको दे दिया है query और आपको ये output दे दिया कि this is the error it is showing. Tell me the reason why it is giving so. So you should know कि the error is because serial number might be primary key, and that's why it will not allow you to enter null values, or it will not allow you to enter duplicate values. ठीक है ना. So this is what primary key is, and you can add primary key like this. I will tell you how to add primary key in starting also. ये तो ये रहा कि जब मैंने टेबल बना ली and now I want to add, तो I can add like this. Alter table लगाइए और add कर दीजिए, ठीक है ना. But if I want to add, सपोज एक टेबल बना के दिखाऊंगी मैं आपको, जहां पर हम स्टार्टिंग में अगर हमें पता हो कि इसमें प्राइमरी की लगानी है, तो वी कैन ऐड. सो दिस इज हाउ टू ऐड आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड. नाउ लेट मी डिलीट दैट प्राइमरी की. आई डोंट वांट दिस सीरियल नंबर एज अ प्राइमरी की, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप. एंड आई वांट टू मेक, देखो कोई भी कॉलम प्राइमरी की नहीं बन सकता यहाँ पर. क्यों? क्योंकि जैसे फिजिक्स बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आपको पता है किसी भी कॉलम में अगर वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो आप उसको प्राइमरी की नहीं बना सकते, है ना. स्टाइपेंड को बनाना चाह, नहीं बना सकती क्योंकि यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है. एवरेज को बनाना चाह, यहाँ पर भी कुछ रिपीट हो रहा होगा, जैसे 60 62 रिपीट हो रहा है. सो आई कांट एंटर हियर, आई कांट मेक दिस इज अ प्राइमरी की. पोजीशन भी नहीं बना सकते. सीबीएसई रोल नंबर को कब बना सकते हो, व्हेन एवरीथिंग विल बी यूनिक, है ना, एवरीथिंग विल बी यूनिक, कोई नल वैल्यू नहीं होगी, तब आप इसको बना सकते हैं. बट फिलहाल हम इसको भी नहीं बना सकते, ठीक है ना. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कॉलम को प्राइमरी की तब बना सकते हो व्हेन देयर इज नो चांस टू रिपीट द कंटेंट डेटा ऑफ दैट कॉलम, है ना. सपोज मैं आपको मैम नेम को बना दूं, नेम को बना सकती हूँ अभी फिलहाल, बट what happens if two Gaurav is there in my class? What happens if two Karan is there in my class? It means I will not be able to enter these two names. अगर सेम नेम के होंगे तो मैं एंटर ही नहीं कर पाऊंगी. So that's why we won't make name as a you can say primary key. तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है कि
identify the primary key among this or which column you can make a primary key. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि which column value won't be repeat, जो कभी रिपीट नहीं हो सकता, तो हम उसको प्राइमरी की बना देते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ लेट मी डिलीट, नॉट डिलीट, आई मस्ट से लेट मी रिमूव द प्राइमरी की. अभी आपने देखा सीरियल नंबर पे प्राइमरी की लगा हुआ है ना. लेट मी डिस्क्राइब वंस, एंड आई डोंट वांट दिस प्राइमरी की फ्रॉम दिस, मुझे रिमूव करना है. सो हाउ कुड आई डू? तो आई कैन राइट व्हाट अगेन ऑल्टर टेबल, ऑफ कोर्स. ठीक है, और क्या लिखना है? ऑल्टर टेबल, कौन सा? ग्रेजुएट. अब एक बार बताओ, डिलीट करने के लिए क्या होता है? ड्रॉप. और ड्रॉप किसको करना है भाई? प्राइमरी की को करना है. कोई कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है. तो हमने क्या किया, सिर्फ प्राइमरी की भी अगर हम लिखेंगे तो इट विल गेट डिलीट. ठीक है, इट विल गेट रिमूव, मतलब कॉलम रिमूव नहीं होगा. व्हाट विल बी रिमूव? Only the primary key will be removed, and you can check with the describe command. See, the column is still there. सिर्फ क्या रिमूव हुआ है? आपका प्राइमरी की. अगर आप ड्रॉप प्राइमरी की ना लिख के आप ड्रॉप सीरियल नंबर लिख देते तो ऑफकोर्स सीरियल नंबर डिलीट हो जाता. बट आपने यहाँ स्पेसिफाई किया है कि ड्रॉप प्राइमरी की, एंड बिकॉज देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की, सो द प्राइमरी की कॉलम गेट्स this primary key only get deleted, not the column, right? So let me show you the foreign key मैम अगर concept. प्राइमरी की हट गया तो वहाँ पे नल तो डाल सकते हैं. Then you can enter null. Yes, then you can enter. तो मैम यहाँ पे नो क्यों दिखा रहा है? ये एक्चुअली मैंने पहले उसको कर दिया था, प्राइमरी की बना दिया था. एंड प्राइमरी की जब बनाते हैं तो उसमें दो चीजें खुद ही ऐड हो जाती है. एक तो कि नॉट नल नहीं लेगा और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होंगी, तो इसीलिए आपको एरर अब ये दिखा रहा है नल. ठीक है, यानी कि आप डुप्लीकेट एंटर कर पाओगे बट नल नहीं एंटर कर पाओगे. एक बार चेक कर लो. देखो, हम सिर्फ वही चेक कर लेते हैं जो हमने ऊपर कमांड लिखी थी. Let me enter one more record again. This is what 11 Sudha is already there, and you can enter now. Query is okay, and you can check. ठीक है, सुधा दोबारा एंटर हो गया है. 11 दोबारा एंटर हो गया क्योंकि प्राइमरी की मैंने रिमूव कर दी है. ठीक है, एंड नाउ लेट अस डू नल आल्सो. लेट अस ट्राई विद नल आल्सो. ठीक है, क्योंकि एक बार जब आप प्राइमरी की लगाते हो ना तो उसमें दो कंस्ट्रेंट लग जाते हैं, एक नॉट नल वाला और एक ये वाला. तो ये खाली नहीं छोड़ेगा बट ये आपको कहेगा आप वैल्यू कुछ ना कुछ डालो. सो दैट इज व्हाट इट इज देयर. तो अगर प्राइमरी की लगा के हटा रहे हो तो ये कंसेप्ट आपका जरूर रहेगा. एक चीज और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ. लेट मी डिलीट दिस 11. आई वांट टू शो यू द फॉरेन की कंसेप्ट आल्सो. ठीक है, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम ग्रेजुएट, कौन सा? वेयर लेट्स से सीरियल नंबर इज इक्वल टू 11. तो ये नहीं कि सिर्फ एक ही डिलीट होगा, जितने सीरियल नंबर 11 होंगे दैट विल गेट डिलीटेड. ओके, क्वेरी ओके. ठीक है, एक टेबल बनाते हैं. इंसर्ट इनटू, मैंने कहा सॉरी, क्रिएट टेबल. लेट्स से मार्क्स या स्कोर कर देते हैं. ठीक है, एंड आई वांट टू मेक सीरियल नंबर एंड लेट्स से मार्क्स इन IT. ठीक है, ये दो मुझे बनाना है. ये मैंने बना लिया. क्वेरी ओके. इंसर्ट इनटू, मैंने कहा देखना, इंसर्ट इनटू स्कोर वैल्यूज. आई सेड 1. 1 के मैंने नंबर दे दिए 87, देन 2 34, 3 56, maybe 4 56, 6 98. I'm randomly putting now 7. अच्छा, 2 एंटर कर चुके, मैं 2 का दोबारा एंटर कर रही हूँ यहाँ पर.
ठीक है 87, that's it. चलो, so this is the records I have entered and select start from score. ठीक है, okay, let me make this serial number again as a primary key because I want to show you the concept of this linking of two tables, right? So we will study in class 12, but let me show you the linking of two tables because you have studied foreign key and primary key. So let us have a look. पहले ऐड कर लेते हैं, ऑल्टर टेबल ग्रेजुएट ऐड क्या प्राइमरी की और क्या बनाना है मुझको प्राइमरी की सीरियल नंबर को बनाना है एंड दैट्स इट. So you can see now this has become primary key, है ना, प्राइमरी की हो गई ना ये. अब मैं चाहती हूँ कि I want to why I'm using this as a primary key and what is foreign key here, what is primary key here. You just have a look. That day I was just giving you the definition and the difference between this प्राइमरी की एंड फॉरेन की. देखो जरा, ये जो ग्रेजुएट है टेबल, इसमें ये सीरियल नंबर इज व्हाट, इट्स अ प्राइमरी, ठीक है. एंड यही सेम कॉलम सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्कोर, यही सेम कॉलम यानी कि सीरियल नंबर हियर इट इज व्हाट, इट इज नॉट अ प्राइमरी की. व्हाई? क्योंकि एक तो इसमें रिपीट हो रहा है डेटा, आपको देख रहे हो गया है ना, और नहीं भी रिपीट होगा सो इट डजंट मैटर. मीन्स कि प्राइमरी की में आपका जो कंटेंट है ना वो रिपीट हो सकता है, मेनली तो बात ये है. अच्छा, अभी क्या कर रहे हो, एक तो सबसे पहला अभी मैं आपको कुछ नहीं, अभी सिर्फ एक डिस्प्ले करके दिखाती हूँ कि इफ आई वांट टू सी द मार्क्स ऑफ करंट, इफ आई वांट टू सी द आईपी मार्क्स ऑफ करंट, हाउ कुड आई सी. देखो करते कैसे, मैंने लिखा सिलेक्ट, क्या चाहिए आपको, एक तो उसका सीरियल नंबर चाहिए और चलो मान लीजिए नेम भी चाहिए, राइट. चाहे मैं कहती हूँ सिर्फ नाम चाहिए एंड आई वांट आईपी मार्क्स, ठीक है. दोनों अलग अलग टेबल से हैं, राइट. तो जब आप फ्रॉम लिखते थे, जब एक ही टेबल से डेटा लेते थे तो आप लिखते थे एक ही टेबल का नाम, isn't it? But now you can see name is from what, graduate, and IP marks is from what, score. ठीक है, तो मुझे दोनों टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, राइट. एंड what if I do like this only, अगर आप कहते हैं मैम इतना ही लिख दो आ जाएगा, तो पहले तो आपको वेयर कंडीशन भी तो डालो कि किसका चाहिए था. आप कह रहे हो वेयर नेम इज इक्वल टू करंट. We will study this in detail in class 12. See what is happening, it's not exactly matching current के साथ 87 सबके साथ लगा के दे दिया. So this is not the result what I required. So for getting the exact result, I need to put what, कि अब कैसे उसको पता चलेगा करंट कौन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा वेयर नेम इज इक्वल टू करंट, या यू कैन से वेयर जो ग्रेजुएट का सीरियल नंबर है ना, ग्रेजुएट डॉट सीरियल नंबर शुड बी इक्वल टू व्हाट, स्कोर डॉट सीरियल नंबर, इजंट इट. जो ग्रेजुएट का सीरियल नंबर है और स्कोर का सीरियल नंबर जहां बराबर हो उनका दिखाओ. अगर मैं सिर्फ इतना करती हूँ तो देखना क्या दिखाएगा, सिर्फ उनका दिखा रहा होगा जिनके रोल नंबर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं. आप देखो ये, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रोल नंबर 1 का डाला था 2462, सिर्फ मैंने ये डाले थे और उन्हीं के ही आ रहे हैं. राज को 2 बार डाला तो राज के 2 बार नंबर ये दिखा रहा है क्योंकि आपने 2 बार चेंज किया उसके नंबर को, पहले 34 किया फिर 87 किया. सो दैट इज व्हाट इट इज चेंजिंग. तो आई मीन टू से कि अगर आपको 2 टेबल को मैच करना है, 2 टेबल को लिंक करना है, तो पहले बात तो आप दोनों रिकॉर्ड देख लीजिए कौन कौन से कॉलम चाहिए, ठीक है. और फिर आप क्या करिए, ये जरूर लिखिए कि इसका सीरियल नंबर और इसका सीरियल नंबर जरूर मैच करना चाहिए. सो व्हाई आई एम मैचिंग दिस, दिस सीरियल नंबर शुड बी प्राइमरी की इन वन टेबल एंड दिस सीरियल नंबर शुड बी फॉरेन की इन द अदर टेबल. फॉरेन की जो कि टेबल को रिलेट करने के लिए काम आ रहा है, तो वही कॉलम जो यहाँ पर प्राइमरी की है वही कॉलम दूसरे टेबल में क्या होगा, फॉरेन की. सो दैट इज व्हाट दिस विल हेल्प यू टू लिंक द 2 टेबल्स. और टेबल को लिंक कैसे कर रहे हैं, इन्हीं दोनों की हेल्प से कर रहे हैं. देखो तभी मैंने लिखा है
वेयर ग्रेजुएट डॉट सीरियल नंबर इक्वल्स टू स्कोर डॉट सीरियल नंबर। तो जहां ग्रेजुएट का सीरियल नंबर और स्कोर का सीरियल नंबर बराबर हो वही रिकॉर्ड दिखाना है। और एक बात तो मुझे सिर्फ करण का चाहिए, तो कैन आई राइट दिस एंड नेम इज इक्वल टू करण, और ये भी होना चाहिए कि नाम करण का ही हो। तो आप देखना, आप सिर्फ करण का आपका रिकॉर्ड दिखेगा, जबकि दोनों टेबल अलग अलग थे, है ना। सो आई कैन सी द रिकॉर्ड ऑफ करण कि करण हैज स्कोर्ड गॉट 87 marks. Got it? So here I have just tried to explain you कि foreign key and primary key is what. foreign key में आपका डेटा रिपीट हो सकता है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, उसमें कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती, कोई आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं एंटर कर सकते। और फॉरेन की का रोल क्या है? इट इज यूज्ड टू रिलेट टू टेबल्स। ठीक है, अगर आपने देखा होगा जो आपने डिटेल्स डाली थी सिर्फ उन्हीं की आ रही है, सबकी नहीं आ रही है आपके पास डिटेल्स। सो दिस इज यूज्ड टू रिलेट टू टेबल्स। हाउ टू राइट कमांड टू अप्लाई फॉरेन की, this I will discuss in next class, but right now you can understand now कि foreign key is what. This will help you. This is the same name column. नाम नहीं हो सकता, नाम भी नहीं कह सकती, हो सकता है सीरियल नंबर पूरा लिख दिया होता, तो नाम की बात नहीं है। अगर एक ही तरह का डेटा है तो आप उन दोनों को लिंक करा सकते हो। ठीक है, सपोज मैं आप कहोगे कि मैम आप तो कह रहे सेम कॉलम होने चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब डेटा वही होना चाहिए जो सीरियल नंबर का डेटा है। अगर उसका नाम चेंज भी कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीरियल नंबर ही तो है। अगर आपका मन किया कि मैंने अपने टेबल में डाल दिया, सपोज मैं कहती हूँ ऑल्टर टेबल स्कोर, चेंज कर दिया मैंने सीरियल नंबर को सीरियल नंबर, राइट, एसआर नंबर। सो कांट, इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, मैं कर सकती हूँ चेंज। ठीक है, चेंज हो गया और आप देखो जरा, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, देखो स्कोर, it is changed, right? So now can I get the number marks? Yes, of course I can get, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो स्कोर है। अब आप ये ध्यान रखना कि ग्रेजुएट में कॉलम क्या है? सीरियल नंबर। स्कोर में कॉलम क्या बना दिया आपने? एस नंबर की जगह आपने बना दिया है एसआर नंबर। तो अब ये दोनों अगर मैच करेंगे तभी वो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। अब देखो अगर मैंने सुधा को डिलीट कर दिया है तो यहाँ पर क्या सुधा वाला रिकॉर्ड है? देखो जरा, oh, I forgot to put this colon, sorry, quotes. So if I will enter this, so no, Sudha record is not there. As you can see in graduate, कोई सुधा का रिकॉर्ड नहीं है और कोई ना मैच कर रहा है, तो कैसे दिखाएगा? तब वो एम्प्टी सेट दिखा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दो टेबल्स को आप रिलेट कैसे कर सकते हो? when one table is having a primary key, जिनमें प्राइमरी की होती है उसको बोलते हैं मास्टर टेबल, और जो दूसरा टेबल जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं चाइल्ड टेबल। ठीक है ना। और ये एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं। कब रिलेट हो सकते हैं? जब दोनों में एक जैसे कॉलम होंगे तब। नाम मैटर नहीं करता, बट हाँ ऑफ कोर्स सीरियल नंबर की जगह एस नंबर लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों टेबल में एक जैसे कॉलम होने चाहिए, और जिसमें रिपीट नहीं कर रहा जो मेन टेबल है उसमें इसको प्राइमरी की बोलते हैं इस कॉलम को, और दूसरे टेबल में इसको फॉरेन की बोलते हैं। तो ये हेल्प क्यों कर रहा है? ताकि आप एक दूसरे को रिलेट कर पाओ। अगर ये कॉलम ही ना होता तो मुझे क्या पता रहता है कि 87 मार्क्स किसके हैं? ठीक है ना। सो दिस विल हेल्प यू टू रिलेट टू टेबल्स। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की। इज देयर एनी डाउट चिल्ड्रन? See, if you know the primary key in advance, आपसे पहले से ही पता है कि ये प्राइमरी की है, तो आप प्राइमरी की टेबल बनाते टाइम भी लगा सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने एक टेबल बनाया, क्रिएट में मैं ड्रॉप कर देती हूँ, ड्रॉप टेबल स्कोर। ठीक है, अभी मैंने फॉरेन की इसको कमांड नहीं दी थी, इसलिए ये आराम से ड्रॉप हो गया। ठीक है, चलो अब मैं इसमें लिखती हूँ, एक मैं बनाती हूँ टेबल। मैंने कहा क्रिएट टेबल स्कोर, एंड यू नो सपोज आई वांट टू मेक हियर सीरियल नंबर एज अ प्राइमरी। ठीक है, या सीबीएसई रोल नंबर एज अ प्राइमरी। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन, इंट साइज देना है दे दीजिए, नहीं देना तो इंट। और अगर आप सपोज मैंने कहा
8 डिजिट का मेरा रोल नंबर है एंड आई वांट टू मेक इट एज अ प्राइमरी की, तो आप यहीं पर लिख सकते हैं प्राइमरी की। गॉट इट? अगर आपको पहले से पता है कि किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, यू कैन राइट इट व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल आल्सो। ठीक है, हो गया ये प्राइमरी की। फिर आपने लिखा सपोज जो भी आपको चाहिए, नेम चाहिए तो नेम डाल दिया आपने। ठीक है, आपने स्कोर डाल दिए and the table is created. Right, now describe it and check it. Primary key is available. Can you see? ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बनाते टाइम ही इसको कर दिया। तो आप बनाते टाइम भी, टेबल को क्रिएट करते टाइम भी आप लिख सकते हो। बस तरीका क्या रहेगा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और जो भी आप कॉलम लिख के और डेटा टाइप साइज लिख के कॉमा लगा देते थे ना, तो कॉमा लगाने से पहले आपको ये लगाना है, फिर आपको कॉमा लगाना है। ठीक है ना, एक कॉलम ओवर होने के बाद